Hello friends, today we learn poem of standard 9. The title of the poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Let's see something about it first, then go ahead. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. He writes all the things about his common and ordinary experiences in his life. So we can learn here about choices, making choices. So you have many choices in your life. You have to choose proper path, choose proper path of that among that choices. So you cannot degrade or you cannot repent for that. Otherwise, if you choose any wrong or if you take any wrong decision, you have to regret in future. That the things you can see here. Then people have many alternative choices. The Robert Frost want to tell us that people have many choices in their life, but among them all choices, which that person choose for his in future or which is beneficial for that person in future, that is important here. आप कौन सा पाथ चूज करते हो और वो सारे पाथ में से आप कौन सी चॉइस है और जो फ्यूचर में भी आपको काम आएगा और फ्यूचर में आपको ऐसा पश्चाताप नहीं होगा कि आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है. ऐसा पाथ आपको चूज करना है, लेकिन वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप कौन सा डिसीजन लेते हो, कौन सा पाथ चूज करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में तो बहुत सारे पाथ है, उसमें से कौन सा राइट है रॉन्ग है वो सिर्फ आपको समझना है. हम ये पोएम स्टांजा वाइज लर्न करेंगे. वन बाय वन स्टांजा वी लर्न इन दिस पोएम. नाउ सी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. स्टांजा 1. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So here first word that given, diverge, means separated. Then the other word is yellow wood. It means the leaves on the trees are yellow, suggesting it is the autumn season. That word or that yellow wood suggests that autumn season is going on at then on that time. Undergrowth means dense growth of plants and bushes. बहुत ज़्यादा growth होना plants and bushes का. Now let's see the explanation what this stanza tells us. The poet has gone into the deep autumn wood, where two roads have diverged into two ways like a fork. दो पाथ है जो डाइवर्स होते हैं आगे जाके. Immediately the poet understands that as a traveler, traveling both the roads is impossible. तो वहाँ पे पोएट को पता चलता है कि दो रोड है लेकिन दोनों में जाना इम्पॉसिबल है. दोनों रोड में ट्रैवलिंग करना एज अ ट्रैवलर दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम. Here the two roads symbolizes two ways to go in life. Two ways symbolize करते हैं. दो पाथ है तो दोनों के दोनों different ways symbolize करते हैं लाइफ में. The poet first thought of traveling both the roads, then discard the idea. पहले उन्होंने सोचा कि दो रोड्स पे ट्रैवलिंग करते हैं. Then he discarded the idea. Then he find himself in dilemma. Dilemma means he are not able to decide. वो अपने आप में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे about the choices of roads. He found that the first road has bent in the undergrowth. बहुत सारा अंडरग्रोथ है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे बसेस है. एक जो ये रोड चूज करोगे तो ये बहुत सारे बसेस है यहाँ पे. The undergrowth here represents the unknown world. So यहाँ पे अंडरग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज सेड अस अननोन वर्ल्ड. वहाँ पे बहुत ज्यादा अननोन होगा. दिस इज वेरी अननोन फॉर हिम दैट इफ ही चूज दिस पाथ सो विच हैड अंडरग्रोथ, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा बशीज है, प्लांट्स है, तो वो बहुत सारा ज्यादा अननोन है उनके लिए. ओके, देन
We see stanza second. Then took the other just as flat hair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. So here fair means good. Then we can say better claim का meaning होता है it seem better, ज़्यादा अच्छा होना. Wanted wear, look less worn out. Then the other thing is passing, like walking down, वहाँ पे walking down, passing. Then what this stanza tells us? The poet selects the road that appears at first glance to be less traveled. उन्होंने एक पाथ चूज किया, वहाँ पहले देखने से हमें पहले तो पता चलता है कि वहाँ पे बहुत कम लोग ट्रैवलिंग करते होंगे, ज्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं करते होंगे. This stanza suggests that he has an independent spirit and does not wish to follow the crowd. ये हमें ये भी दिखाता है कि उनको ज्यादा क्राउड पसंद नहीं है, क्राउड में जाना पसंद नहीं है, वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट है. Then we say that go ahead. After a moment he changes his mind. अभी तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया, अपना माइंड बदल दिया. Concluding that both roads are equally worn out. दोनों के दोनों एक ही जैसे है, दोनों के दोनों सेम ही दिखते हैं, उनको ऐसा लगने लगा. अभी हम आगे जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है पोएम में. स्टांजा 3. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा मीनिंग देखते हैं. इक्वली ले का मतलब होता है वी आर इक्वली कवर्ड. देन ट्रॉडन ब्लैक, देखिए वहां पे लिखा है ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है टर्न द पाथ ब्लैक बाय क्रशिंग द लीव्स. पहले तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे कि पूरा ट्रॉडन ब्लैक हो जाएगा. टर्न द पाथ ब्लैक, देन वे लीड्स ऑन टू वे. उसका मीनिंग होता है वन थिंग लीड्स टू अनदर, एक है जो दूसरे को अनदर लीड्स करती है. तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आगे जैसे जैसे हम स्टैंजा लर्न करते हैं तो पोएम में क्या नया आता है. लीव्स कवर बोथ रोड्स इक्वली, यानी कि दोनों रोड्स में लीव्स सेम है. नो वन दिस मॉर्निंग हैज एट टेकन अदर पाथ, for the leaves lie undisturbed. This symbolizes that the choices in life open to the poet are both unknown to him. The poet remains committed to his decision to take the road he previously selected, saying that he will save the other road for another road. एक साइड चूज करेंगे पहले तो दूसरे साइड को अच्छा लगेगा. एक रोड अनदर रोड को ले जाता है तो उनको पहले ये सोचा ये ठीक लगा, अभी दूसरा सोचा वो ठीक लग रहा है. This symbolizes that he will make the other choice in life only if he is not satisfied with the result of the first choice. तो पहले तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि उन्होंने अपना माइंड बदल दिया, एक के बाद अनदर चॉइस चूज करते हैं. ये देखने के बाद पता चलता है कि वो अपने डिसीजन से ही सेटिस्फाइड नहीं है. एक चॉइस चूज करते हैं और उसके बाद पहली चॉइस पे आ जाता है, यानी कि बदलता रहता है, कंफ्यूजन है. He observes that he will probably never pass this way again, as one path leads to another, and thus will never have an opportunity to take the other road. अभी उनको ये पता चलता है कि एक रोड चूज करने के बाद अभी दूसरे रोड जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी या वो सक्सेस नहीं होगा तो वो वापस नहीं आ पाएगा और दूसरा पाथ चूज नहीं कर पाएगा. यानी कि आपने एक बार जो डिसीजन ले लिया और वो गलत साबित होता है तो आप उनको बदल नहीं सकते हैं कि ये नहीं ये अच्छा था तो अभी मैं ये चूज कर लूंगा, तो ये ऐसा नहीं होता है. तब तक तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली जा चुकी होती है, वो आप लॉस कर चुके होंगे. This symbolizes that he will not be able to take the second choice in life at all.
ये दिखा देगी उनकी लाइफ में अभी सेकंड चॉइस है ही नहीं, अभी एक चॉइस है, उनको ही अच्छे से अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में उनको चूज कर लेना है. नाउ लेट्स सी लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4. I shall be telling this with a sign. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now, word that sign, satisfaction or regret shows here. Ages and ages hence, many years in the future. यहाँ पे क्या दिखाई देता है हमें कि पहले की साइन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट, एजीज एंड एजीज हैंस इसका मतलब होता है मैनी ईयर्स इन द फ्यूचर, बहुत सारे ईयर्स के बाद फ्यूचर में उनको क्या होता है रिग्रेट या रिग्रेट के जैसा साइन होता है या उनको डिससेटिस्फैक्शन होता है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन अबाउट इट दैट आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजीज एंड एजीज हैंस. In years to come, the poet says, he will be telling others about the choice he made, meaning that he will talk about what decision in life he took. उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया है ये दिखा रहा है. While doing so, he will sign either with relief that he made the right choice or with regret that he made the wrong choice. अभी उनको क्या पता चलता है, उनको अपने डिसीजन पे कंफ्यूजन होता है और अपने डिसीजन पे वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, जैसे कि उसने जो भी डिसीजन लिया है वो आगे जाके अच्छा साइन करेगा या रिग्रेट का साइन होगा या रिलीफ होगा, अभी उनको ये पता नहीं चल रहा है, जैसे कि राइट चॉइस होगा या रॉन्ग चॉइस होगा. वेदर राइट और रॉन्ग, द चॉइस विल हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. लास्ट में क्या होता है, टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस. ऑल द डिफरेंसेस यानी कि यहाँ पे क्या होता है, द चॉइस विल हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. जो भी चॉइस होगी आगे जाके तो पता चलने ही वाली है, उनका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ही होगा, यानी कि जो भी इसकी इम्पैक्ट है वो उनकी लाइफ में देखने को मिलेगी इन फ्यूचर. दिस इज द पॉइंट. अभी हमने क्या देखा है, 4 स्टांजा लर्न किया, उसमें जो भी मेन आइडिया थे वो भी हमें पता है कि चॉइसेस है जो कि आगे जाके हमें रिग्रेट होना है या अच्छे से हम उस चॉइस पे प्राउड कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, वो तो हमें पता तभी चलेगा जब हम कोई एक पाथ चूज कर लेंगे. यानी कि आपने जो रॉन्ग किया होगा तो वो स्पॉइल कर सकता है, लेकिन आपने अच्छा डिसीजन लिया होगा तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है. So here we can learn this Robert Frost poem, The Road Not Taken. This is the all meaning I explained here with stanza 4, which is completed. Now we will see the next poem in our next video. Thank you.